Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, Thank you for tuning in to this broadcast. इस प्रसारण में सम्मिलित होने के लिए आपका धन्यवाद। It is our privilege to bring this broadcast to you every week. ये हमारा सौभाग्य है कि हम हर सप्ताह आपके लिए ये प्रसारण लेकर आ पाते हैं। If you are joining our broadcast for the first time, यदि आप पहली बार हमारे साथ प्रसारण में सम्मिलित हो रहे हैं, we are nearing the end of a series about biblical compassion. तो हम बाइबल अनुसार दया पर आधारित श्रृंखला के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। We are looking at the book of Jonah. हम योना की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं And in this broadcast, we'll start looking at chapter 3. और इस प्रसारण में हम 3 अध्याय पर गौर करना प्रारंभ करेंगे। So get your Bible and get ready. तो अपनी बाइबल लीजिए और तैयार हो जाइए। In the past, we looked at the difference between sentimentality and true biblical compassion. बीते समय में हमने भावुकता और बाइबल अनुसार सच्ची दया के बीच के अंतर पर गौर किया था। We learned that to have biblical compassion, you must listen to the Word of God and do whatever God tells you to do in His Word. हमने जाना कि बाइबल अनुसार दया पाने के लिए आपको परमेश्वर का वचन सुनना और वो करना आवश्यक है जो परमेश्वर अपने वचन में आपको करने के लिए कहता है। Do you know what the most difficult task for a believer is? क्या आप जानते हैं कि एक विश्वासी के लिए सबसे कठिन काम क्या है? No, it's not prayer. नहीं, ये प्रार्थना नहीं है। No, it's not praise. नहीं, ये आराधना नहीं है। No, it's not going to church. नहीं, ये आराधनालय जाना नहीं है। No, it's not even living a godly life. नहीं, यहाँ तक कि ये भक्तिपूर्ण जीवन जीना भी नहीं है। The most difficult part of a believer's life is to be an authentic witness for Jesus Christ the Lord. एक विश्वासी के जीवन का सबसे कठिन भाग है यीशु मसीह प्रभु के लिए एक सच्चा गवाह बनना। Why? क्यों? Because if you are an authentic witness for the Lord, क्योंकि यदि आप प्रभु के लिए एक सच्चे गवाह हैं, you will be praying for the lost. तो आप खोए हुओं के लिए प्रार्थना करेंगे। If you're an authentic witness for the Lord, यदि आप प्रभु के लिए एक सच्चे गवाह हैं, you will be praising Him. तो आप उसकी आराधना करेंगे। If you are an authentic witness for the Lord, यदि आप प्रभु के लिए एक सच्चे गवाह हैं, you will be going to church. तो आप आराधनालय जाएंगे। If you are an authentic witness to the Lord, यदि आप प्रभु के लिए एक सच्चे गवाह हैं, you will be living a godly life. तो आप एक भक्तिपूर्ण जीवन जिएंगे। So if you get your authentic witnessing lifestyle in order, all of your Christian life will fall into place. तो यदि आप अपनी सच्ची गवाहीपूर्ण जीवन शैली को सही क्रम में ले आएं, तो आपका पूरा मसीही जीवन सही हो जाएगा। In the courts of law, कानून की अदालतों में an authentic witness on the stand might help either convict or acquit a person. कटहरे में खड़ा एक सच्चा गवाह एक व्यक्ति को सजा दिलवाने या छूटने में मदद कर सकता है। In the courts of law, कानून की अदालतों में if you have more than one authentic witness, they can definitely decide the fate of a person. यदि आपके पास एक से ज्यादा सच्चे गवाह हैं, तो वो निश्चय ही एक व्यक्ति के भाग्य का फैसला कर सकते हैं। I want you to understand this so well that you can feel it. मैं चाहता हूं कि आप इसे इतनी अच्छी तरह से समझें कि आप इसे महसूस कर सकें। Everything around us is depriving us of having spiritual eyes. हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वो हमें आत्मिक दृष्टि पाने से वंचित कर रहा है। Everything around us is working to keep us from living in the realm of the Spirit. हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वो हमें आत्मा के राज्य में जीने से रोकने के काम में लगा हुआ है। But in the spiritual realm, परंतु आत्मिक राज्य में our testimony can save or damn somebody. हमारी गवाही किसी को बचा सकती है या दोषी ठहरा सकती है। In the courts of heaven, an authentic witness can help determine the eternal future of others. स्वर्ग की अदालतों में एक सच्चा गवाह औरों का अनंत भविष्य निर्धारित करने में मदद कर सकता है। An authentic witness can make a difference whether someone else will be in heaven or in hell for an eternity. एक सच्चा गवाह इस बात में एक निर्णायक तथ्य हो सकता है कि कोई व्यक्ति सदा काल के लिए स्वर्ग में जाएगा या नरक में। Do you see the enormity of the task of the witness? क्या आप गवाही के काम की घातकता को देख रहे हैं? But there is more. परंतु कुछ और भी है। Being a witness for Jesus Christ यीशु मसीह के लिए एक गवाह होना is the one thing that you do that is nearest and dearest to the heart of Jesus. ये एक ऐसा काम है जो आप करते हैं जो यीशु के मन के सबसे समीप और प्रिय है। The salvation of the lost souls खोए हुए आत्माओं का उद्धार is the nearest and the dearest ministry to the heart of Jesus. यीशु के हृदय की सबसे समीप और सबसे प्रिय सेवकाई है। You can fellowship
all you want. आप जितना चाहे संगति कर सकते हैं, You can educate all you want. आप जितनी चाहे शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, You can sing to your heart's content. आप अपने मन की संतुष्टि होने तक गा सकते हैं, You can feed and clothe. आप खाना और कपड़ा दे सकते हैं, You can go on retreats and conferences. आप सभाओं में और समारोहों में जा सकते हैं, You can go to in-depth Bible studies. आप गहरे बाइबल अध्ययनों में भाग ले सकते हैं, You can do all of these things. आप ये सब कर सकते हैं। But if you are not involved in witnessing and making disciples, परंतु यदि आप गवाही देने और शिष्य बनाने के कार्य में शामिल नहीं हैं, you are not doing the one thing that is dearest and nearest to the heart of Jesus. तो आप एक वो काम नहीं कर रहे हैं जो यीशु के मन के सबसे समीप और प्रिय है। Because this is the dearest and the nearest to the heart of Jesus, क्योंकि ये काम यीशु के मन के सबसे समीप और प्रिय है that in every one of the four Gospels, as well as in the book of Acts, कि चारों में से प्रत्येक सुसमाचारों में और साथ ही प्रेरितों के काम की पुस्तक में the very last words of Jesus prior to his ascension into heaven were, "Be my witnesses." यीशु के स्वर्गारोहण के तुरंत पहले के उसके अंतिम शब्द यही थे, मेरे गवाह बनो। You may ask this question. आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं, If witnessing is the nearest and the dearest to the heart of Jesus, यदि गवाही देना यीशु के मन के सबसे समीप और प्रिय है, then why is it the most difficult thing to do? तो फिर ये सबसे कठिन काम क्यों है? Listen carefully to the answer. ध्यानपूर्वक उत्तर को सुनिए। Because it is the one ministry that Satan hates the most. क्योंकि यही एक सेवकाई है जिससे शैतान सबसे अधिक नफरत करता है। He hates for you to pray. वो आपके प्रार्थना करने से नफरत करता है, He hates for you to sing. वो आपके गाने से नफरत करता है, He hates for you to live a godly life. वो आपके भक्तिपूर्ण जीवन जीने से नफरत करता है। But the one thing he hates the most परंतु एक बात जिससे वो सबसे अधिक नफरत करता है, is when you give a witness to the power of the Lord, वो है जब आप प्रभु की शक्ति की गवाही देते हैं, is when you give witness to the eternal life that is given by Jesus Christ. वो है जब आप उस अनंत जीवन की गवाही देते हैं जो यीशु मसीह देता है। Satan hates that. शैतान को इससे नफरत है। Here is a good rule of thumb that you should keep in mind. और ये है सुनहरा नियम जो आपको दिमाग में रखना चाहिए What Jesus loves, Satan hates. कि यीशु जिस बात से प्रेम करता है, शैतान उससे नफरत करता है। And that is why witnessing is the one ministry that Satan will put all of his stops to keep you from doing. और इसीलिए गवाही देना एक ऐसी सेवकाई है जिसे करने से रोकने के लिए शैतान आपके मार्ग में अपनी पूरी बाधाएं ला खड़ी करेगा। It is the one ministry that Satan will do everything possible to discourage you from doing. ये एक सेवकाई है जिसे करने से आपको निराश करने के लिए शैतान हर संभव प्रयत्न करेगा। And if you give up the witnessing lifestyle, you are delighting Satan. और यदि आप गवाही की जीवन शैली को त्याग देते हैं तो आप शैतान को प्रसन्न करते हैं। Now, I know these are strong words, but they are the truth from the scripture. अब मैं जानता हूं कि ये कड़े शब्द हैं, परंतु ये वचन का सत्य है। Authentic witnesses for Jesus Christ are what the world is longing for. संसार यीशु मसीह के सच्चे गवाहों के लिए ही तरस रहा है। Authentic witnesses for our salvation are what will bring conviction to sinners to repent. हमारे उद्धार की सच्ची गवाही ही है जो पापियों को पश्चाताप के लिए कायल करेगी। Now, what do I mean by authentic witness? अब एक सच्चे गवाह से मेरा क्या अर्थ है? As an answer to this question, I will tell you a true story. इस प्रश्न के उत्तर के रूप में मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। There was a machinist who worked for an automobile manufacturer. एक मैकेनिक था जो गाड़ियां बनाने की एक कंपनी में काम करता था। One day he became a Christian and was baptized in the name of Jesus. एक दिन वो मसीही बन गया और उसने यीशु के नाम से बपतिस्मा ले लिया। This man knew that he could not become an authentic witness without righting the many wrongs that he had done in the past. ये व्यक्ति जानता था कि वो तब तक एक सच्चा गवाह नहीं बन सकता जब तक कि वो अपनी सब गलतियां नहीं सुधार लेता जो उसने पीछे की थी। My listening friends, this is very important. मेरे श्रोता मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। You can proclaim your faith all that you want, आप जितना चाहे अपने विश्वास का प्रचार कर सकते हैं, but until you have righted the wrong that you have done in your life, परंतु जब तक आप अपने जीवन में पीछे की गलतियों को नहीं सुधारते, you are not an authentic believer in Jesus Christ. आप यीशु मसीह के सच्चे विश्वासी नहीं हैं। And the man in this story knew that he had to right the wrongs that he had done. और इस कहानी में ये व्यक्ति जानता था कि उसे उन गलतियों को सुधारना जरूरी है जो उसने की थी। What did this man do in the past? इस व्यक्ति ने अतीत में ऐसा क्या किया था?
For years before he became a Christian, क्योंकि मसीही बनने से वर्षों पहले तक he had been stealing parts and tools from his employer for many years. वो अपने मालिक की फैक्ट्री से पुर्जे और औजार चुराता रहा था। Well, God converted him thoroughly. खैर परमेश्वर ने उसे पूर्ण रूप से बदल दिया। So after his baptism and profession of faith, he acted out his public profession of faith. तो अपने बपतिस्मे और विश्वास के अंगीकार के बाद उसने अपने विश्वास का सार्वजनिक व्यवहार दिखाया। He took all the stolen parts and tools to his employer, वो सब चुराए हुए औजार और पुर्जे अपने मालिक के पास वापस ले आया and he explained the situation to his employer. और अपने मालिक को उसने सारी बात बता दी। He told his foreman that he knew that he could not witness for the Lord until he had done the right thing. उसने अपने मुख्य कर्मचारी से कहा कि वो जानता है कि जब तक वो सही काम नहीं करेगा वो प्रभु के लिए गवाह नहीं बन सकता। He risked being fired in acting out his faith. अपने विश्वास का प्रदर्शन करते हुए उसने नौकरी से निकाले जाने का जोखिम लिया। But not only did he return all the stolen goods, परंतु उसने न केवल चुराया हुआ सारा सामान ही वापस किया, but he also asked that his employer would forgive him. परंतु उसने ये भी याचना की कि उसका मालिक उसे माफ कर दे। His foreman did not know what to do. उसका मुख्य कर्मचारी नहीं जानता था कि क्या करे। The owner of the company was on an overseas trip visiting a foreign plant. कंपनी का मालिक किसी दूसरे देश में एक कारखाने का दौरा कर रहा था। So they sent the owner a long cable explaining the situation and asked him for a decision. तो उन्होंने मालिक को सारी स्थिति बताते हुए एक लंबी तार भेजी और उसका फैसला मांगा। The owner immediately returned a cable with a decision. मालिक ने तुरंत फैसले के साथ तार वापस भेजी। He said, "Dam up the river and baptize the entire city." उसने कहा नदी को पानी से भर दो और पूरे शहर को बपतिस्मा दो। Now do you understand what makes an authentic witness? अब आप समझे कि एक सच्चा गवाह कैसे बनता है। Authentic witnessing must begin with an authentic change of heart. सच्ची गवाही का एक सच्चे हृदय परिवर्तन के साथ प्रारंभ होना आवश्यक है। Authentic witnessing must begin with authentic repentance and authentic change in life. सच्ची गवाही का सच्चे पश्चाताप और जीवन में सच्चे परिवर्तन के साथ प्रारंभ होना आवश्यक है। Unfortunately, that does not happen very often these days. दुर्भाग्यवश आजकल ऐसा अक्सर नहीं होता है। Some people claim to become Christians while they're still unfaithful. कुछ लोग मसीही होने का दावा करते हैं जबकि वो अब भी अविश्वासी होते हैं। People look at Christians and they do not see any difference. लोग मसीहियों की तरफ देखते हैं और उन्हें कोई फर्क दिखाई नहीं देता। A dishonest businessman has not forsaken his dishonesty when he becomes a Christian. एक बेईमान व्यवसायी मसीही बनने के बाद भी अपनी बेईमानी का त्याग नहीं करता। And sadly, that's how the world sees Christianity. और दुर्भाग्यवश मसीहत को संसार ऐसे ही देखता है। It is no wonder that we are not making any difference in the world. ये कोई आश्चर्य नहीं है कि हम संसार में कोई बदलाव नहीं ला पा रहे हैं। When you look at the life of Jonah, you understand the power of witnessing. जब आप योना के जीवन को देखते हैं तो आप गवाही की शक्ति को जान जाते हैं। There are some people who look at the life of Jonah ऐसे कुछ लोग हैं जो योना के जीवन को देखते हैं and they focus on the miracle of Jonah's survival in the belly of the great fish. और वो महामच्छ के पेट से योना के बच निकलने के चमत्कार पर ही एकाग्र हो जाते हैं And that's where they stop. और बस यही रुक जाते हैं। They need to move on to chapter 3. उन्हें तीसरे अध्याय पर जाने की आवश्यकता है। Why? क्यों? Because in reality, there is a far greater miracle that most Christians ignore. क्योंकि वास्तव में एक इससे भी बड़ा चमत्कार है जिसे अधिकतर मसीही अनदेखा कर जाते हैं। That is the miracle that resulted from Jonah's preaching. ये वो चमत्कार है जो योना के प्रचार के फलस्वरूप हुआ। I want you to listen very carefully to Jonah chapter 3 verses 1 to 10. मैं चाहता हूं कि आप योना की पुस्तक 3 अध्याय के 1 से 10 पदों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया
क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु, कोई कुछ भी न खाए, वे ना खाएं और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की उसने ठानी थी उसको ना किया। If the miracle of surviving inside the whale is great, यदि मच्छ के पेट के अंदर जीवित बचे रहने का चमत्कार इतना बड़ा है, the miracle of the conversion of the Ninevites is far greater. तो नीनवे के लोगों के मन परिवर्तन का चमत्कार इससे कहीं बड़ा और अद्भुत है। For the Ninevites to be converted नीनवे के लोगों का मन परिवर्तित होना would be like seeing the greatest criminal you know becoming a witness for Jesus Christ. ऐसा था जैसे कि आप एक बहुत बड़े अपराधी को, जिसे आप जानते हैं, यीशु मसीह के लिए गवाह बनते देख रहे हो। Archaeology tells us that the Ninevites were a fierce and vicious people. प्राचीन उल्लेख हमें बताते हैं कि नीनवे के लोग बहुत ही कठोर और दुष्ट लोग थे। Archaeologists record that the king of Nineveh methodically cut off the noses of the people that they conquered. पुरातत्व विज्ञानी लिखते हैं कि नीनवे का राजा विधि अनुसार उन लोगों के नाक काट दिया करता था जिन्हें वो युद्ध में जीतते थे, And skinned them alive. और जीवित ही उनकी चमड़ी उतार देते थे। For the Ninevites to be converted was a miracle of all miracles. नीनवे के लोगों का मन परिवर्तन सब चमत्कारों से बड़ा चमत्कार था। Don't miss this miracle. इस चमत्कार को अनदेखा ना कीजिए। And that is why Jesus said, और इसीलिए यीशु ने कहा, there is unspeakable joy in heaven when a sinner repents. जब एक पापी पश्चाताप करता है तो स्वर्ग में ऐसा आनंद मनाया जाता है जो वर्णन से बाहर है। Modern man thinks that he has become more civilized than our ancestors. आधुनिक मनुष्य ये सोचता है कि वो अपने पूर्वजों से अधिक सभ्य बन गया है। We think that we are kinder and better people than the past generation. हम सोचते हैं कि हम पिछली पीढ़ी से अधिक दयालु और अच्छे लोग हैं, But God sees the same wickedness in our hearts. परंतु परमेश्वर हमारे मनों में भी उसी दुष्टता को देखता है। And this is precisely why God wants His children to be witnesses for Him. और बिल्कुल इसी वजह से परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे उसके गवाह बने। But my listening friends, our time has come to an end. परंतु मेरे श्रोता मित्रों, हमारा समय समाप्त हो चुका है। Please join us next time when we look at the 3 special things that God always does for His witness. कृपया अगली बार भी हमारे साथ सम्मिलित हो जब हम उन 3 खास कामों पर गौर करेंगे जो परमेश्वर अपने गवाह के लिए हमेशा करता है। Until then, I wish you God's richest blessing. तब तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।